everyone, so welcome back to our channel Maths Pathshala with Ankita. Today we are going to start your new chapter, chapter number 10, according to your NCERT book, which is Exponents and Power. So first of all, try to understand what is exponent and power. ओके एक्सपोनेंट आपका क्या होता है? एक ऐसा मेथड जिसके अंदर कोई भी लार्ज नंबर को आप सिंपली एक पावर की टर्म में लिख सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट. लाइक इफ यू हैव गिवन 2 into 2 into 2 into 2, so you can write it 2 की पावर 4, 2's power 4. कैसे? 2 जो था आपका आपने लिखा उसकी पावर 1 2 3 4 टाइम्स है, so you can mention here 2 की power 4. So this is the exponents. Okay. Now this part, this is known as a power. It's power. Okay. So there are some laws of exponents जो हम इस चैप्टर के अंदर लर्न करने वाले हैं for your exercise 10.1. So first one is a की power m then divide by a's power n. So ये क्या होगा? जब भी डिवाइड की फॉर्म में होता है आपका बेस सेम होता है, मतलब जो नंबर है आपका वो अगर सेम होता है तो उनकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी? वहां पे सब्ट्रैक्ट हो जाती है. ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव गिवन 5 power 5 divided by 5 power 2, so your answer is 5 power will be subtracted. So 5 minus 2, that is 5 power 3. Is it clear? Okay, next one. When you have given a base a and power is m and their power is n, that means it is in the form of multiply. You can direct multiply their powers. Okay. Next one. When you have given the two different types of base and with a same power, then their power will be common. Okay. You can just simply multiply them and use their power. Okay. Next one. When you have given the two different type of base and their power is same in the divide form, then you can commonly use it as a single power. Okay, आप वहाँ पे single आप उसको use कर सकते हैं. Then if you have given any number which are having a 0 as a power, so that means it is a 1. Okay, when you have given the two numbers whose base are same, okay, when you have given the base are same and its power is different, then their power will be added. When it is in the form of a multiply, their power will be added. When it is in the form of division, their power will be subtracted. Is it clear? So it is very beneficial for your exercise 10.1. So let's do your exercise 10.1. So question number 1 of exercise 10.1 is evaluate. You have given the three parts here. 3's power minus 2. जब भी आपको -2 पावर गिवन होते हैं तो उसको आप क्या कर सकते हो? उसको आप रिवर्स कर सकते हो. ओके, उसको आप क्या कर सकते हो? रिवर्स फॉर्म में लिख सकते हो. सो यू कैन राइट हियर 1/3 की पावर 2. ओके, इसको आप कैसे लिख सकते हो? यहाँ पे नेगेटिव है आपके पास, सो 1/-4 की पावर 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है ये. यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो? हाफ की पावर -5 गिवन है, इसका मतलब हाफ को आप जब डिवाइड में लिख रहे हो, सो इट विल कन्वर्टेड इनटू 1/2 की पावर 5. और जब डिवाइड में होता है तो उसको आप कैसे लिख सकते हो? 2/1 की पावर 5 लिख सकते हो. ओके, 1 जो है आप वहां से एलिमिनेट कर सकते हो, यहाँ पे हटा सकते हो, डायरेक्ट आप 2 की पावर 5 भी लिख सकते हो. नाउ सॉल्व इट. So this will be 3 into 3. 3 की पावर 2 है तो 2 टाइम्स आप लिखोगे. यहाँ है -4 into -4. सेम सेंस में आपके पास यहाँ रहने वाला है 2 की पावर 5. दैट मीन्स 2 into 2 into 2 into 2. 2 जो है वो आपको 5 टाइम्स आ जाएगा. सेम 1/9. 3 3s are 9. Minus plus 4 4s are 16. This will be 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. Is it clear? Okay, so do the next question, question number 2. So question number 2 is simplify and express the result in the power rotation with the positive exponent. जो भी आपको दे रखा है उसकी पावर को क्या करना है? हमें रोटेट करना है और उसका पॉजिटिव एक्सपोनेंट लेके आना है. ठीक है, हमें रिजल्ट जो है वो पॉजिटिवली लेके आना है, उनको सिंप्लीफाई करना है. सो फर्स्ट you have given -4 power 5 divided by -4 to the power 8. Okay, so ये आपके पास फॉर्मूला अगर आपको याद रहो, if -4 is a, so a की पावर m divide by
a की पावर n। हमने देखा था जब बेस सेम होता है, डिवाइड के फॉर्म में होता है, सो इनकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको a की पावर n, दैट मीन्स -4 की पावर 5 डिवाइड बाई a की पावर n, so this will be -4 की पावर 8। आपके पास क्या है, बेस बिल्कुल सेम है, आप यहाँ लिखने वाले हो -4 की पावर 5 - 8, so this will be -4, पावर जो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, so this will be -3। when you subtract 5 from 8, when you subtract 5 from 8 you will get 3, बट यहाँ पे नेगेटिव है, आपका जो लार्जर नंबर होता है उसका आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नेगेटिव यूज करते हैं। जो भी लार्जर नंबर होता है उसके जो साइन यूज किया जाता है वही साइन हम यूज करते हैं, राइट। सो दिस इज -3, ओके। और आप बोल सकते हो whenever you subtract 8 from 5 so you will get a -3 आंसर, ओके। हमें बोला गया है पॉजिटिवली करना है, तो इसको आप रिवर्स कर सकते हो। 1/4 की पावर जो है वो क्या हो जाएगी आपकी 3, पॉजिटिव कन्वर्ट होगी। अब इसको क्या कर सकते हो आप, 4 into -4 into -4, so this will be 1/4, 4s are 16, 16 4s are 64, and minus minus plus, again plus minus means minus, so your answer is 1/64. Is it clear? Okay, to the next part. Second part is 1/2 की पावर 3 ने 2. So हमने देखा था whenever you have given a number whose power is given to you, another power is also given. So अब क्या करते थे, उनको उनकी पावर जो थी वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। सो सेम you have to do with this. This will be 1/2 की पावर 3, इसकी पावर हो जाएगी 2, क्योंकि 2 जो है वो दोनों से डिवाइड होता है। इज इट क्लियर? हमने देखा था a की पावर m अपॉन b की पावर m। हमने देखा था जब हमारे पास नंबर डिफरेंट होते हैं बट पावर सेम होती है तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन b की पावर m, ओके। तो m यहाँ पे 2 है, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सेम मैंने यहाँ पे किया है, इसकी पावर 2, इसको क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया, ओके। नेक्स्ट अब आप क्या कर सकते हैं, 1 की पावर 2, दैट मीन्स 1 into 1 सेम रहने वाला है। यहाँ क्या होगा आपका, जब पावर को पावर से मल्टीप्लाई करोगे सो दिस विल बी 2 की पावर 6। नाउ यू कैन राइट हियर 1 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 6 टाइम्स आप लिखने वाले हो इसको। So this will be 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, and 32 2s are 64. So your answer is 1/64. Is it clear? Okay, do the next part. So third part is -3 power 4 multiplied by 5/3 पावर 4। सेम आपके पास में है, जब बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो, ओके। बेस सेम हो तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों को पहले मल्टीप्लाई करोगे एंड देन उसकी पावर जो है वो आप लिख सकते हो, सेम आप यहाँ करने वाले हो। सो a into b दैट मीन्स -3 into 5/3 लिखोगे, इसकी पावर क्या हो जाएगी आपके पास 4। सो ये क्या है आपके डिवाइड फॉर्म में है, इनको कैंसिल आउट कर सकते हो, गेट आउट 1। सो दिस विल बी 1 into 5, so -1 into 5 power 4, this will be -5 into 4 power 4। so आप क्या करोगे, -5 into -5 into -5 into -5, so this will be 5 5s are 25, माइनस माइनस जो है प्लस हो जाता है, अगेन 5 5s are 25, so 25 into 25 that means 25 का स्क्वायर हो गया, वो क्या होता है आपके पास 625। Is it clear? Okay, do the next part. Fourth part, which is -3 to the power -7 divide 3 to the power -10
इंटू 3 टू द पावर माइनस 5। सो सेम बेस जब आपके पास में सेम होता है और पावर डिफरेंट होती है, डिवाइड के फॉर्म में होता है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, उनका जो पावर जो होता है वो क्या हो जाएगा वहां पे, डिवाइड की फॉर्म में तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, a की पावर n डिवाइड में a की पावर m, सो दिस विल बी a n माइनस m वहां पे कर सकते हो। सो सेम यहाँ पे करोगे आप, a है आपके पास 3, इसकी पावर क्या हो जाएगी -7 माइनस 10, ठीक है। सो ये हो जाएगा 3 -7 माइनस माइनस प्लस 10, सो दिस विल बी 3 की पावर, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट -7 प्लस 10, सो दिस विल बी प्लस माइनस माइनस, सो ये हो जाएगा 3 की पावर 3, आपके पास क्या रिमेनिंग था 3 टू द पावर -5। अब फॉर्मूला आपको याद हो, अगर बेस सेम होता है a की पावर n इंटू a की पावर m, सो बेस सेम है, सो पावर विल बी एड, सो दिस विल बी 3 की पावर 3 प्लस -5, ओके, सो दिस विल बी 3 प्लस माइनस 5, सो आंसर इज 3 माइनस 2, ओके। माइनस दे रखा है आपका तो उसको क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, सो दिस विल बी 1/3 की पावर 2, इसको आप लिख सकते हो 1/3 इंटू 3, सो दिस विल बी 1/9। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3, ओके। अब यहाँ पे पावर आपके पास सेम है, बेस जो है वो डिफरेंट है, दैट मीन्स a की पावर m इंटू b की पावर m, सो यहाँ क्या होता है a इंटू b, पावर जो है वो कॉमन आ जाती है, सेम सेंस में दिस विल बी 2 इंटू -7, ओके, इसकी पावर क्या हो जाएगी आपके पास -3, सो दिस विल बी 7 2s आर 14 की पावर -3, माइनस में पावर है तो आप उसको क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, सो दिस विल बी 1/-14 की पावर 3, इज इट क्लियर? ओके, सो दिस विल बी -14 इंटू -14 इंटू -14, so this will be 196 into -14, when you multiply this you will get 196 multiplied by 14, 6 4s are 24, 2 9 4s are 36, then 38, 3 4 1s are 4 plus 3 7, so this will be 9 and 1, so answer is 1/-2744, is it clear? Okay, do the next question, question number 3. So question number 3 is find the value of, you have given some parts, you have to find the value, उसको simplify करना है, solve out करना है, then you will get, जब भी किसी की पावर 0 होती है, so this will be converted into 1 plus 4 की पावर -1 यहाँ पे गिवन है, माइनस में दे रखा है तो आप उसको क्या लिख सकते हो 1/4, राइट, इंटू 2 की पावर 2, दैट मीन्स 2 इंटू 2, 2 2s are 4, okay, now you can take its LCM 4, then this will be 4 plus 1 इंटू 4, ये हो जाएगा 5/4 इंटू 4, कैंसिल आउट कर सकते हैं, विल गेट अ 1, सो योर आंसर इज 5, okay, do the next part. Second one is 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 डिवाइड बाई 2 की पावर -2, सो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/4, हमने क्या देखा था, जब भी पावर माइनस में होता तो उसको आप रिवर्स कर सकते हो, दिस विल बी डिवाइड बाई 2 की पावर -2, दिस विल बी 1/2 की पावर 2, ओके, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 4 2s are 8 डिवाइड में दिस विल बी 2 की पावर 2, दैट मीन्स 4, सो दिस विल बी 1/8, इसके डिवाइड में आपका आ रखा है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, दिस विल बी 4/8, दैट मीन्स
1/2. Is it clear? Okay, next part. So part third, half power will be -2 plus 1/3 power -2 प्लस 1/4 पावर जो है वो -4 हो जाएगी। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, नेगेटिव यहाँ पे गिवन है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए रिवर्स कर सकते हो, उसके बाद में यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। सो ये नेगेटिव है आपके पास, जो दिस विल बी 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2। रिवर्स किया आपने, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डिनोमिनेटर जो वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस विल बी 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16. Okay, so this will be 25 plus 4, 29. Is it clear? Okay, next part. Next one is fourth part, 3 power -1 plus 4 to the power -1 plus 5 to the power -1 एंड देन होल पावर इज 0। इसकी पूरी पावर जो है आपको 0 यहाँ पे गिवन है। हमें बताया गया था कि आपके पास कोई भी नंबर हो उसका पावर अगर 0 होता है तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सोल्व कीजिए। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। यू विल गेट अ नंबर, एक सिंगल नंबर आ जाएगा जिसकी पावर आपको 0 दे रखी है। ठीक है, डायरेक्ट इसको 1 भी लिख सकते हैं। You can take its LCM. LCM यहाँ पे लोगे 5 4s are 20, 23s are 60. So LCM will be 60. So you will get 20. Okay, when you divide this, you will get 15 plus you will get a 12 whole to power 0. So this will be 20, 30, 40, 47/60। अब आपके पास कॉमन नंबर आ चुका है जिसकी पावर 0 है, सो यू विल गेट 1। या फिर आप डायरेक्ट वहां पे भी 1 कर सकते थे। इज इट क्लियर? क्योंकि हमने क्या देखा था कि बेस अगर आपके पास a हो उसकी पावर 0 हो, सो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू 1। सो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे सिंगल आपकी टर्म बनाई है जिसकी पावर 0 है, सो यू विल गेट 1। ओके, नेक्स्ट पार्ट। So fifth part is this will be the last part of this question. So यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है, देन उसकी पावर आपको दे रखा है। तो सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बाद में आप क्या कर सकते हैं, उसकी पावर 2 यूज कर सकते हैं। सो हियर दिस विल बी 3/2। जब भी नेगेटिव होता है तो हमारा क्या कन्वर्ट हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में कन्वर्टेड इनटू न्यूमरेटर। ओके, सो ये हो जाएगा इसकी पावर 2 एट द लास्ट पावर 2। पावर से पावर जो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आंसर इज 3/2 पावर 4। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, 4 टाइम आप यूज कर सकते हैं। दिस विल बी 2। आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस यू विल गेट 3 3s are 9 और माइनस माइनस जो है प्लस हो जाता है। सो 9 9s are 81। यहाँ पे 2 2s are 4, 2 2s are 4, so 4 4s are 16. So your answer is 81/16. Okay, rest of the question we will do in your upcoming video. See you.